Hello student, good morning. How are you? I think you all are fine. We are discussing chapter number 4 in your class 7. The topic was women and equality. Previous lecture number 3, we discussed about social status of social conditioning of women's condition, that means the social conditioning of gender roles. The previous is this. In this lecture we discussed the reason of gender inequality. In this topic we discussed the reason of gender equality. The reason of gender inequality there are different many reasons, but some reason are social, economic, religions and politics. There is I write the 4 and we explain the 4 topics of gender inequality. One is social, second is economic, third is regional, and the 4 is political. These 4 are main topics or main points for gender inequality. जब हम जेंडर इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं तो कई सारे रीजन्स उसमें हमारे पास आते हैं. उस रीजन्स में हमने 4 रीजन्स को इंक्लूड किया है. दैट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दिस इज सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. वन इज सोशल रीजन. इन द सोशल रीजन our society, as we told that our society preferred male but not female. हमारे सोसाइटी में मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, नॉट इन फीमेल. तो मेल आर वेरी important. People thinks or our society think that male are very important. They are bread earner, they work hard, okay, and social and our societies think that females are not so important. They lives inside the home, okay. Their work is only keep inside home, take care of children, take care of the house, cooking food, etc. But दिस इज द थिंग ऑफ सोशल कंडीशन. ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हमारी सोसाइटी में वोमेंस के जो कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे कम होते चला गया. स्लोली वो कम होते चल गए और सोसाइटीज़ में फीमेल्स के स्टेटस को डाउन कर दिया गया, प्रेफर्ड कर दिया गया. ये चीज़ें स्टोरी टाइप्स. द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द स्टोरी टाइप्स. तो स्टोरी टाइपर्स, तो our society think that boys are very important, not the girls are not so important, okay. Due to story types, the condition of social in the social status our women, हमारी जो महिलाएं हैं उनका जो social status है वो धीरे धीरे डाउन होते चला गया, कम होते चला गया. The next one is economic. In economics condition, as we know that we think, our society think that male, that means men are bread earner, they work hard, they go out of home, search of food, search of jobs, okay, from early morning to late night, working hard, and they earn money, bread earner. So the importance of male is more than the importance of female. And जो दूसरी चीज़ें आती है वो है कि जब मेल बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो मनी अर्न करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पावर होगा, वे सोसाइटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे इस इकोनॉमिक की वजह से. एंड द फीमेल इज ओनली एंड द फीमेल डिपेंडेंट टू मेल. और जो फीमेल है वो मेल पर डिपेंडेंट हो जाती है. इकोनॉमिक्स, उनके पास अपना कोई मनी नहीं है, कोई इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, जिस वजह से हमारी सोसाइटीज़ में, या हम बात कर सकते हैं फीमेल को, उनका इकोनॉमिक धीरे धीरे या उनका इकोनॉमिक पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और वो डिपेंडेंट है अपने मेल पर. मेनली हाउसवाइफ्स, our mother, our sisters, our auntie, they work hard. And 7 days, 24 into 7 days, they work hard. They take care of children, cooking food, cleaning our house, okay. But their economical condition is not so good. They dependent to their husband, their brothers, and the male members.
मेल मेंबर्स, इस चीज़ों को, क्योंकि उनके पास अर्निंग ऑफ सोर्सेज कुछ नहीं हो पाता है, वो घर के अंदर रहती है, उनको बाहर काम करने नहीं दिया जाता है। जब वे बाहर काम करने के लिए जाएंगी, वे मनी अर्न करेंगी, तभी वो डिपेंडेंट खुद पर हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के कंडीशंस कम हो पाता है। ये अभी बात है, हम लोग आगे बात करेंगे कि जब वो मनी अर्न करेंगी तब उनका कंडीशंस कैसा है, अभी ये बात की है। जब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जब बात करते हैं वो है रिलीजियस। रिलीजन्स के मैटर पर जब हम बात करें, धर्म के आधार पर बात करें, तो आवर सोसाइटी या और आवर रिलीजन, हमारा जो धर्म है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिखिज्म, एनी रिलीजन्स, ओके, मेनली हिंदूज एंड मुस्लिम, द बोथ रिलीजन्स, उन्होंने वोमेंस को घर के अंदर रख दिया पर्दा सिस्टम के थ्रू। और रिलीजियस मैटर पर भी द इम्पोर्टेंस ऑफ मेल इज़ मोर एंड द फीमेल इम्पोर्टेंस उनमें कम दिया गया, क्योंकि उनमें उनको ये माना गया कि वे औरतें घर पर रहेंगी, महिलाएं घर पर रहेंगी, फीमेल्स घर पर रहेंगी, एंड दे वर्क आउट एंड द मेल वर्क आउट ऑफ द हाउस। ज़्यादातर जितने भी रिलीजियस प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं उसमें मेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है, फीमेल के पार्टिसिपेशन कम हो जाती हैं। तो रिलीजियंस में भी, रिलीजियस के पैटर्न पर भी फीमेल्स का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, उनके स्टेटस को कम हो जाते हैं। हालांकि कई जगहों पर जो रिलीजियस बुक्स हैं, एंड वी रीड, if we read carefully, then we see the importance of female is equal to the importance of men. ये हमने कई जगहों पर देखा भी है जो बुक्स में लिखी। अगर हम रिलीजियस बुक को वी स्टडीज़ वेरी केयरफुली, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि रिलीजन्स में इक्वलिटीज़ दी गई है। एवरी रिलीजन्स, हर रिलीजन ये मानता है, एवरी रिलीजन्स, द होली बुक्स, इफ़ वी रीड द होली बुक्स ऑफ गीता, महाभारता, गीता, रामायणा एंड पुराण, कुरान एक्सेट्रा, अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको उसमें पता चलता है कि एवरी रिलीजन्स says that no, male equality of male and female, but our society is the male dominated society, and male dominated society की वजह से रिलीजन्स के कुछ पार्ट्स को हाइड कर दिया गया और मेल को इम्पोर्टेंस माना गया, एंड स्टेटस ऑफ, एक नाम दे दिया गया कि रिलीजन्स है, रिलीजियस के बेसिस पर फीमेल्स के जो कंडीशंस है दे इज डाउन, एंड रिलीजियस मेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फीमेल का स्टेटस इज नॉट सो गुड। एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल। इन पॉलिटिकल कंडीशंस अर्ली पीरियड से ही, स्टार्टिंग से ही अगर हम बात कर सकते हैं, फ्रॉम द अर्ली पीरियड द कंडीशन ऑफ वोमेन स्टेटस इन पॉलिटिकल क्राइटेरिया और पॉलिटिकल अगर हम में बात कर सकते हैं तो वहाँ उनका इम्पोर्टेंस नहीं है। देयर इज़ नो एनी इम्पोर्टेंस, ओके, दे फील, वो फील करते हैं उनको कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं मिला है, चाहे हम मोनार्कियल सिस्टम्स की बात करें, डेमोक्रेसी में बात करें, नो, उसमें जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इज़ नॉट वेरी, उसमें फीमेल्स के जो पार्टिसिपेशन हैं इन पॉलिटिकल्स में उतने ज़्यादा नहीं हैं, इज़ वेरी लेस, नहीं, बहुत ही कम है। और आज भी अगर हम बात कर सकते हैं तो नंबर ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम नंबर बात करें रिप्रेजेंटेटिव की, तो पॉलिटिक्स में बहुत ही कम फीमेल इंटर्ड करती है। बट आवर गवर्नमेंट्स और आवर गवर्नमेंट्स थिंकिंग दैट, वो थिंक करती है, आज सोचती है कि फीमेल्स के पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने चाहिए। इन एग्जांपल हम दे सकते हैं इन पंचायती राज सिस्टम, ओके, वी सी दैट इन पंचायती राज सिस्टम बिहार गवर्नमेंट 50% जो है वो पार्टिसिपेशन का ऑर्डर दिया है कि 50% रिजर्व होगा वोमेन्स के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल था कि 33% रिजर्व फॉर पार्लियामेंट के लिए, बट ये प्रपोजल अभी तक लागू नहीं हो पाया है, ये रूल्स नहीं बन पाया है। तो अगर हम ये बात करें कि इन पॉलिटिकल कंडीशंस इट इज़ नॉट सो गुड, ओके, द फीमेल्स स्टेटस इज़ नॉट सो गुड एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज़ वेरी लो। अगर हमने ये बातचीत की तो इस तरह से हमने देखा कि देयर इज़ द 4, 1 इज़ द सोशल, सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक, थर्ड इज़ द रिलीजन्स एंड द पॉलिटिकल। दीज आर द 4 रीजन वेयर आवर फीमेल condition and status are not so good, okay. And for one example, that the being married off at an early age did not allow the female in developing her own identity. She was totally dependent on the husband. This means from early time
we see that the females child marriage is occur, बचपन में शादियां हो जाती थी, and the being the married of an early age, उन जो फीमेल्स थी उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता था. she didn't receive any education systems. okay, वे घर के अंदर रह जाती थी, वो एजुकेशन को रिसीव नहीं कर पाती थी. that and did not allow the female developing her own did not allow the female in developing her own identity. तो बीइंग चूंकि शुरुआत में उनकी शादी हो गई, अर्ली मैरिज शादी हो गई, दे लिव्ड इन द इनसाइड ऑफ होम, दे वर्कड एंड दे कुक्ड फूड एंड लुक आफ्टर देयर चाइल्ड. सो उनका अपना आउन जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती, एंड शी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड. एंड शी, और जब वो अपना इकोनॉमिकल उनका बंद हो गया या वो एजुकेशन जब उनको नहीं मिल पाती थी तो वो डिपेंडेंट अपने हस्बैंड पर हो जाते थे. एंड इफ अगर हस्बैंड उनका केयर सही ढंग से नहीं रखा तो दे केयरलेस, दे वर केयरलेस, वो केयरलेस हो जाती है, मजबूर हो जाती है, उनको कोई ध्यान रखने वाला नहीं हो पाता. वन एग्जाम्पल ऑफ डाउरी हैज लेड to increase female infanticide, making the population disturbance. Second examples, we discussed that dowry is a very dowry is one example is dowry एक ऐसा एग्जाम्पल है दे सकते हैं, दिस इज अ वेरी बैड थिंग इन आवर सोसाइटी. अगर हम बात करें कि बहुत बुरी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अंदर में आई है, बिकॉज डायरी हैज़ लेड टू इंक्रीज, डाउरी की वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को ज़्यादा किया गया. बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था. पर आजकल मेडिकल साइंस में ये भी पता चल जाता है कि जन्म लेने से पहले वो लड़की है या लड़का है, बॉयज़ और गर्ल है, तो उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, या अगर जन्म लेने के बाद बाय बर्थ इफ़ देयर इज़ द गर्ल उनको मार दिया गया. सो द फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से जो नेचुरल balance, it is the natural balance of male and female, okay, it is disturbed, so making the population disturbance. जिस वजह से जो population differences, if we see that the many states number of boys and the number of girls are very different. Some state number of boys per 1000, number of girls is very low. अगर हम बात करें कुछ states की, बहुत सारे like हरियाणा, बिहार and some other states where the number of girls are less than number of boys per 1000. Example. Okay, so the second is 4 centuries. Next one we discussed that 4 centuries the inheritance of property was restricted to the male members of the family. This practice made women economically dependent. अगर हम अब बात कर सकते हैं सेंचुरीज की बात करें, सैकड़ों सालों से एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि जो फीमेल्स हैं उनको फादर्स के प्रॉपर्टीज पर कोई राइट्स नहीं मिल पाता है. दैट मीन्स फीमेल वर रिस्ट्रिक्टेड टू द मेल मेंबर्स एंड ऑन देयर फैमिली. यानी फादर्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बारे में बात किया तो उसमें शेयरिंग फीमेल को नहीं दिया जाता था, ओनली द मेल मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वे आपस में ही बांट लेते थे, और फादर की तरफ से उनके अपने डॉटर्स को उनको किसी भी तरह का नहीं दिया जाए. दिस इज द मेन रीज़न कि फीमेल्स के इकोनॉमिकल वेरी लॉस. अगर किसी के डॉटर है और उनके फादर्स अगर उनके इकोनॉमिकल वेरी गुड, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, लेकिन उनको आफ्टर मैरिज के बाद, शादी होने के बाद उनको फादर्स की प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स नहीं दिया जाता था. दिस वन, तो दिस प्रैक्टिस मेड वोमेन इकोनॉमिकली डिपेंड, दिस प्रैक्टिस में वोमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, जिस वजह से वो डिपेंडेंट हस्बैंड पर हो जाती थी या अपने सन के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाती थी, नॉट इन द पावर. बट अभी मॉडर्न टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो पास्ड अ लॉ, उसने एक हिंदू सक्सेशन एक्ट को पास किया गया जिसमें फादर्स के प्रॉपर्टीज पर इक्वल राइट्स उनके डॉटर को भी दिया जाएगा. रिसेंट टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास्ड ऑर्डर दिस इज डिक्लेयर्ड दैट द प्रॉपर्टीज, फादर्स प्रॉपर्टीज डॉटर्स शेयर्स, यानी फादर्स के शेयर्स, वी सेड दैट द शेयरिंग ऑफ फादर्स प्रॉपर्टीज डॉटर्स को भी उनका एक राइट्स दिया जाएगा, ये हम उसको कह सकते हैं. इन रिसेंट ईयर ए लॉट ऑफ चेंज हैज टेकन प्लेस एंड वोमेन आर नाउ कंसिडर्ड टू बी इक्वल. दे चूज प्रोफेशनल करियर्स एंड जॉब्स. बट इफ वी डिस्कस टूडेज, आज के बारे में अगर हम बात कर सकते हैं, टुडे वी डिस्कस दैट इन रिसेंट टाइमिंग पर, इन मॉडर्न टाइमिंग एजुकेशन का रेशियोज धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है, एंड द गर्ल्स एंड वोमेन्स एंड द सम पार्ट्स, नॉट इन द होल ऑफ द इंडिया बट द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ वोमेन्स, एजुकेशन नंबर ऑफ वोमेन्स, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वोमेन्स is increased, and she received
higher education and she received the higher प्रोफेशनल कोर्सेज एंड वो हायर एक अच्छे कोर्सेज में भी जा रही हैं, एजुकेशंस के फॉर्म में पर जा रही हैं, जिस वजह से उनको एक अच्छा जॉब मिल रहा है और दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद से अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, शी स्ट्रांग हो रही है, शी विल स्ट्रांग एंड देयर फ्यूचर विल वेरी ब्राइट. So they choose professional careers and jobs so that if education is received, अगर वो education उनको मिल रहा है तो धीरे धीरे वो grow up करती चली जा रही हैं. This one is the main reason. So we discussed that there is the 4 reason and we see that the some reason that child marriage and dowry, both the some example of women's condition of status of our society, women's status of our society. Okay, and now we discuss the next one. Now we see that the National Commission for Women was set up in 1990 to protect the rights and legal entitlements of women. नेशनल वोमेन्स कंडीशंस को बढ़ाने के लिए, द कंडीशन ऑफ वोमेन्स स्टेटस को ग्रो अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने द नेशनल कमीशन फॉर वोमेन्स, इट इज सेट अप इन 1990. द रीजन वाज द प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ वोमेन. वोमेन्स के पावर्स को, उनके राइट्स को प्रूव करने के लिए वोमेन्स राइट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्ट के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स को सेटअप किया गया. ऑल्सो एवरी स्टेट ऑल्सो सेटअप वुमेन्स कमीशन फॉर द प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द लीगल एंटाइटलमेंट फॉर वुमेन्स. महिलाओं के अधिकारों के लिए, वुमेन्स के राइट्स के लिए, उनके पावर्स एंड उनके प्रोटेक्शंस के लिए. इफ द एनीवन वर्क अगेंस्ट वुमेन्स and the society or any people, any person, any institutions, उनको गाइडलाइन देने के लिए, उनको वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन्स कमीशन सेटअप किया गया. One third of the elected seat in local governing bodies like panchayat have to be reserved for women to increase their participation in social and political sphere of the society. जैसे अभी हमने आपको कहा कि पहले ने बताया, we discussed that in political situation, okay, the number of women are very less. So इनको इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल है, एक लॉज पास किया गया. दैट मीन 1/3 ऑफ दी local panchayat, that means panchayati raj system, 1/3 of the seat are reserved in local bodies, okay, like panchayat. In Bihar it is the 50%, but the some areas 1/3 of the reserved for women, because it is because the increase of participation in social and political status, ताकि political status में भी women's के participations को धीरे धीरे increase किया जा सके. If women's participation and they understood that the work of politicals and work of administration in politics and panchayat, after they grow up in MLAs and MP, other posted, okay. Now it is very few ladies at hand, it is a very few ladies. She worked in political area, but the government of India and some institutions, some organizations, they want that the number of वुमेन्स विल इंक्रीज, उनको इंक्रीज होना चाहिए, उनको पार्टिसिपेशन में बढ़ना चाहिए, और ये काम ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ द वुमेन्स आर पार्टिसिपेशन, अगर वो इंटरेस्टेड के साथ वो पार्टिसिपेटेड होगी तो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड दे वर्क फॉर आवर सोसाइटी. Okay, so some step to achieve gender equality, and the last point we discussed that we discussed the some step to achieve the government the gender equalities. कुछ एक ऐसे steps होंगे जिस steps को हम अगर follow कर सकते हैं, then we try to achieve the gender equalities. हम कोशिश कर सकते हैं कि gender equalities तक आए. तो one is the talk to women and girl. Our societies, like our parents and our society's male members, educated persons, they talk to women and girl, and they tried to understood that what's the problems, they know, वो जाने कि तो problems क्या हैं girls and women's के, and they solve their problems. So first they talk to girls and
वोमेन्स एंड गर्ल्स से बात करनी होगी, उनके प्रॉब्लम्स को जानना होगा एंड उनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना होगा. द सेकंड वन, द स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट. सो द वन थिंग इज द चाइल्ड मैरिज. हमें सबसे पहले जो सेकेंड वर्क है चाइल्ड मैरिज को, बिकॉज वी नो दैट द चाइल्ड मैरिज इज ऑब्स्टेकल टू आवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड देयर सोसाइटी. अगर हम चाइल्ड मैरिज करते हैं, अगर लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है एंड दे डिपेंड ओनली हस्बैंड एंड देयर फैमिलीज. So we stop the child marriage. Next one is the making education gender sensitive. और जो थर्ड वन इज कि एजुकेशन को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है एंड वी नो एंड we know the importance of education and importance of girls education. So we try to improve the education percentage, also we sensitive for education. Next one, the rise aspiration of girls and their parents. We talk to girls, we talk to the girls parents and parents also talk to their daughter, their girls member and their aspiration. They know what's the aspiration of girls. Girls की, लड़कियों की एक्चुअलिटी कि हम बॉयज़ के एस्पायरेशंस को जानना चाहते हैं, स्पेशली पेरेंट्स कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा एंड हमारी अपनी बेटियों को उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. बट वी मस्ट वी नो द एस्पायरेशन ऑफ गर्ल्स और उनके एस्पायरेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए और उनको आगे बढ़ा सकते हैं. इफ़ द गर्ल्स वांट हायर स्टडी वी मस्ट सेंड देम, उनको भेजें एंड उनकी हेल्प करें, इकोनॉमिकली हेल्प एंड एजुकेशन. एंड द एम्पावर मदर्स, because the importance of mother is it is the very important of our mother in our society, because our mother born us, our mother take care us, our mother cook food, our mothers take care our house also, and she continually works 24 into 7 days, so that we understood the importance and empower of mothers. And हमें अपनी we must respect our mother also. And the next one is the give proper value of women work. If we know the empower of mothers, if we improve the power of mothers, that we improve and we know the proper value of women's work. हमें जानना पड़ेगा कि वोमेन्स के वर्क का इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी, आवर होम और अदर प्लेसेस में क्या है और उनको एक रिस्पेक्ट देना होगा, एक प्रॉपर रिस्पेक्टेबल वी वर्क इट एंड नाउ वी वर्क टुगेदर. Not in stereotypes, we work in every society, every places we work together. That means male and female both. If male and female work together, our country, our state and our society and the grassroots level, from grassroots level to the higher level, we achieve and we progress. We will progress if we work together. And the last one is the stop the violence. Stop the violence. We must stop the women's violence and we must stop the thinking stereotypes and we must stop the sexual harassment and another thing. हमें उन सब चीज़ों को रोकना होगा, then we will progress. So in this chapter we discussed women and their equality and we understood what is the importance of women and what is the importance of equality. If we work equal to male and female and the gender, then our country will increase. Okay, thank you very much. I think you all understood. Okay, so stay home and be happy. Thank you very much.